Hello everyone, I am Vikas Mandal. Today I came with the new topic from the human resource management. In my earlier video, I have discussed about recruitment, and today I have come with selection. So those who have not seen that particular video, go through that particular video, will get more and more information on that. Okay, so today I will start selection. It is a very important topic on human resource management, and from the point of view those who are BBA and MBA, those who are having the exam in the Makaut University, Makaut Maulana Abul Kalam Azad University, so they can refer these notes, or they can make these notes and they can hear that particular lecture. Okay, so you will get benefit from that. So okay, so today we'll go and start with the chapter is selection. Okay, what is the meaning of selection and the process? Very important. What is the meaning and the purpose of selection? So today I will discuss what is the meaning of the selection. So in recruitment, what we are doing, in recruitment we are searching the candidate, we are making the pull up application. So in selection, what we'll do, we are actually discovering the most promising and suitable candidate to fill up the vacant job position in the organization. Means we are discovering, so again I am repeating the definition. Selection is the process of discovering the most promising and suitable candidate to fill up the vacant position in the organization. So selection is nothing but a process. So selection ends the recruitments. Okay, selection ends the recruitment, and selection it is a negative process and recruitment is a positive process. Why it's called negative process and recruitment is a positive process? Because as in recruitment we are generating the application pool. Okay, application pool. Okay, and here in selection we are just curtailing down the application, means we are rejecting the unsuitable candidates. That's why it's called the negative process. Okay, so we have discussed the definition of selection in the normal layman's sense. If anybody have forgotten that particular definition, so they can also write in that particular manner. In selection means, selection is the process in which we are actually selecting the right candidate or the suitable candidate from the above application or above application pool of application. सो कहां से हम लोग सिलेक्शन में क्या करते हैं, हम लोग सुटेबल कैंडिडेट को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द पूल ऑफ एप्लीकेशंस. ओके, सो नाउ वी आर गो विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. क्या प्रोसेस रहता है सिलेक्शन का? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. चाहे वो 12 के बीएसटी वाले एग्जाम, बीएसटी के जो स्टूडेंट हैं उन लोग के एग्जाम में भी आ सकता है, जिसका भी एग्जाम नहीं हुआ है ड्यू टू लॉकडाउन, अब उसका भी एग्जाम होना बाकी है, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. यहाँ से एक केस स्टडी या एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही मिलेगा. रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन से 2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा. ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं द प्रोसेस क्या है. फर्स्ट जो रिक्रूटमेंट सिलेक्शन का जो प्रोसेस क्या है, फर्स्ट में है प्रीलिमिनरी इंटरव्यू. ठीक है, फर्स्ट में क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी इंटरव्यू में क्या करते हैं इसको हम लोग समझ लेते हैं. इन प्रीलिमिनरी इंटरव्यू हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट का एप्लीकेशन पूल रिक्रूटमेंट के थ्रू जनरेट हुआ है उसमें से मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट को हम लोग बुला लेते हैं, और वहां पर क्या करते हैं, वी आर डिस्कसिंग अबाउट देयर पर्सनल का जो बातें रहते हैं ना, उसके घर में कितने हैं, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, उसका हॉबीज क्या है, एंड ऑल द इंफॉर्मेशंस क्या करते हैं हम लोग चेक कर लेते हैं इन द प्रिलिमिनरी इंटरव्यू. प्रिलिमिनरी इंटरव्यू कौन लेते हैं इसको भी बता देते हैं. ये कोई एक्सपर्ट पैनल नहीं लेते हैं. यहाँ पर कोई एचआर एक्सपर्ट पैनल जो पैनल जो रहते हैं ना इंटरव्यू के टाइम में, वो पैनल नहीं रहते. यहाँ पर एक नॉर्मल एचआर एग्जीक्यूटिव और एचआर मैनेजर ले लेते हैं. नॉर्मल इंटरव्यू है, यहाँ पर सिर्फ उसका इंटरेस्ट एरिया, उसका पर्सनल इंफॉर्मेशन को वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट है, नेक्स्ट सेकंड एप्लीकेशन ब्लैंक.
व्हाट वी आर डूइंग इन एप्लीकेशन ब्लैंक, जब भी हम लोग कभी इंटरव्यू देने जाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो एक एक करके एप्लीकेशन फॉर्म दे दिया जाता है, उसको हम लोग को फिल्ड अप करना पड़ता है सारे डिटेल के साथ। एज वी हैव द सीवी, सीवी हम लोग के पास भी रहता है, लेकिन उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन का, सब अपना अपना स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहता है, उसको हम लोग को फिलअप करना रहता है। वहां पर सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन लिखना पड़ता है, नाम वगैरह, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके हॉबीज, एक्सपीरियंस, एक्सपेक्टेड सैलरीज कितना चाहिए, सारे कुछ वहां पर भरना पड़ता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ब्लैंक। वहां पर क्या होता है, दे विल प्रोवाइड यू द ब्लैंक एप्लीकेशन फॉर्म एंड यू हैव टू फिल्ड अप ऑल द डिटेल्स on that particular form related to your personal information, educational information and the experiences। ओके, जितना भी एक्सपीरियंस आपको किए हैं सारे वहां पर क्या करना होगा, आपको यहाँ पर देना होगा एप्लीकेशन ब्लैंक में। थर्ड जो आपको रहेगा, थर्ड ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर क्या होता है, सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट आप लोग तो सुने ही होंगे, सिलेक्शन टेस्ट, दोज हु आर बीबीए एमबीए जिस पर कैंपस ड्राइव होता है, वहां पर सिलेक्शन में सिलेक्शन टेस्ट रहता है, ठीक है, कि उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग सिलेक्शन टेस्ट में क्या करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट होता है। सिलेक्शन टेस्ट सिलेक्ट करने के लिए कुछ कुछ टेस्ट किया जाता है, हम बताएंगे आपको कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट क्या क्या होता है, ठीक है, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा क्या क्या सिलेक्शन का टेस्ट कैसे कैसे लिया जाता है। तो इसको लिखते हैं पहले, सिलेक्शन टेस्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेक्शन टेस्ट, ठीक है। फर्स्ट जो सिलेक्शन टेस्ट है, देखिएगा, फर्स्ट आता है एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट, फर्स्ट टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग भाई, इसको समझ लेते हैं। पहले तो एप्टीट्यूड का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। यदि एप्टीट्यूड का मीनिंग आपको पता चल गया तो एप्टीट्यूड टेस्ट किस लिए लिया जाता है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पता, यहाँ पर इस टेस्ट में आपको क्या पता चलता है, क्या चलता है, हाउ quick you can learn, how quick you can learn, ठीक है, ये उसका मीनिंग है। एप्टीट्यूड का मीनिंग, कभी इंटरव्यू में पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्टीट्यूड, तो यहाँ पर क्या बताना है कि हाउ क्विक यू कैन लर्न, इसका जो डेफिनेशन है यही है। तो एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग का लर्निंग कैपेसिटी जो है, हम लोग कितना जल्दी किसी चीज को सीख सकते हैं, इसमें हम लोग का क्या करते हैं, देखते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट के थ्रू कितना जल्दी, कितना पोटेंशियलिटी है हम लोग में किसी भी मेथड को सीखने के लिए, ये हम लोग चेक कर लेते हैं। मींस आपका लर्निंग कैपेबिलिटीज जो है वो चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि कितना आपका लर्निंग कैपेबिलिटी है उस चीज को सीखने के लिए, कितना जल्दी आप क्विक उस चीज को सीख सकते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या सकते हैं, आपका पोटेंशियलिटी वो चेक किया जाता है कि कितना जल्दी, हाउ क्विक यू कैन लर्न, कितना जल्दी आप सीख सकते हैं, इस पे क्या होता है आपको चेक किया जाता है। नेक्स्ट जो टेस्ट है आपका इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, इंटेलिजेंस टेस्ट में देख लीजिए, यहाँ पर दो चीज है, वन है आईक्यू, अनदर वन इज ईक्यू। आईक्यू है इंटेलिजेंस क्वोशेंट एंड ईक्यू है इमोशनल क्वोशेंट, ठीक है। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या करते हैं, हम लोग किसी का आईक्यू लेवल को चेक करते हैं कि उसका इंटेलिजेंस कितना है किसी भी काम को करने के लिए, या ईक्यू चेक करते हैं, इमोशनल क्वोशेंट क्या है उसका, आइदर वो किसी काम को करने दिए वो इमोशनल हो जा रहा है, किसी भी सिचुएशन, कोई क्रिटिकल सिचुएशन आ गया तो रोने ना लग जाए, या वो सिचुएशन को छोड़ के भाग ना जाए, इस तरह का जो वो होता है ना, क्या होता है इंटेलिजेंस टेस्ट में हम लोग क्या चेक करते हैं, हम लोग का आईक्यू चेक कर लेते हैं, इंटेलिजेंस क्वोशेंट क्या है और ईक्यू कितना है आपका, ये चेक कर लेते हैं, ताकि कोई भी काम यदि आपको सौंपा गया, कोई भी रिस्पांसिबिलिटी आपको दिया गया है, देन यू विल एक्चुअली एग्जीक्यूट दैट पर्टिकुलर रिस्पांसिबिलिटी इन अ प्रॉपर डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट पे हम लोग चलेंगे पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट, ओके। पर्सनालिटी टेस्ट में क्या चेक करते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट में देखिए, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैविंग डिफरेंट डिफरेंट पर्सनालिटी, सबका अपना अपना पर्सनालिटी होता है, सबका अपना 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 एटीट्यूड है, अपना अपना वैल्यू सिस्टम है, सबका अलग अलग जगह से बिलोंग करते हैं, विद द डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस, विद द डिफरेंट रीजन, सबसे अलग अलग वैल्यू सिस्टम है, सबका बिलीफ सिस्टम अलग है, तो सबका थिंकिंग वे एंड ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटी भी अलग अलग है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग पर्सनालिटी टेस्ट में चेक करेंगे, ठीक है, कि किस हिसाब से हम लोग वो डिसीजन को ले रहा है, ठीक है। इसमें दो चीज चेक करेंगे, यहाँ पर हम लोग चेक करेंगे आइदर दैट पर्टिकुलर पर्सन इज रैशनल डिसीजन मेकर और नॉट रैशनल डिसीजन मेकर,
ये पहले समझ लेते हैं कि रैशनल डिसीजन मेकर है क्या चीज। रैशनल डिसीजन मेकर मींस होता है क्या है कि हम लोग पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एस्पेक्ट जो भी है वो लोग दोनों साइड्स को बैलेंस करके चलते हैं। ऐसा नहीं कि किसी भी काम को कर दी उसके बाद पता चला कि भाई पॉजिटिव में ये हुआ तो नेगेटिव उसका डबल हो गया, तो उसको रैशनल डिसीजन मेकर नहीं बोलेंगे। रैशनल डिसीजन मेकर तभी बोलेंगे जब उसने कोई डिसीजन लिया है वहां पर पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ द साइड को चेक करके उसने डिसीजन लिया है, देन इट विल कॉल्ड द रैशनल डिसीजन मेकर। मींस हियर वी आर इन पर्सनालिटी टेस्ट, वी आर चेकिंग अबाउट द अप्रोचेस। अप्रोच कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, उस पर्टिकुलर पर्सन का एटीट्यूड, उसका ऑब्जर्वेशन कैसा है, वो पॉजिटिव वे पे जाता है या नेगेटिव डायरेक्शन पे लेता है, ये यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या होगा इस पे पर्सनालिटी टेस्ट पे। ठीक है, नेक्स्ट जो है नेक्स्ट टेस्ट है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट में क्या करते हैं हम लोग, इन ट्रेड टेस्ट वी आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग द एग्जिस्टिंग स्किल। एक पर्टिकुलर पर्सन का एग्जिस्टिंग क्या स्किल सेट है उसको हम लोग किससे टेस्ट करेंगे, ट्रेड टेस्ट से। वहां पर कुछ वर्क सैंपल दिया गया, उसको पूछा गया कि भाई आपने एग्जिस्टिंग जो कंपनीज में काम किए थे तो उसमें क्या क्या काम किए थे आप सब, वो बोला कि ये हम काम किए थे, प्रोडक्शन में थे, ये काम किए थे, पॉलिसिंग वगैरह कर रहे थे, तो उसको सेम टाइप ऑफ वर्क वहां पर दिया जाएगा टू चेक द एग्जिस्टिंग स्किल, ताकि वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है उसको फाइंड आउट करना है यहाँ पर। सो इसके लिए क्या लेते हैं, ट्रेड टेस्ट। नेक्स्ट जो टेस्ट है इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट टेस्ट में क्या होता है कि एक पर्सन है ना, वो लोग का सबका अपना अपना इंटरेस्ट एरियाज होता है। सपोज फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन एज अ मेजर इन एमबीए एचआर में मैंने स्पेशलाइज्ड किया है, लेकिन कुछ पर्सन है जो एचआर तो ले लिए हैं फ्रेंड्स के बहकावे में आकर, लेकिन उसको फिनांस ज्यादा अच्छा लगता है या मार्केटिंग ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, लेकिन वो ले लिए हैं, अभी तो ले लिए हैं तो चेंज तो नहीं कर सकते। बट इन सडन केसेस क्या होता है ना, कुछ जगह पे ऐसा रहता है कि भाई ठीक है आप एचआर के हैं लेकिन आप मार्केटिंग में भी काम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग में ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कैंडिडेट का इंटरेस्ट एरिया को चेक कर लेंगे कि उसका इंटरेस्ट एरिया किस में है। आइदर वो एचआर में काम करना चाहता है कि फाइनेंस में काम करना है, एचआर में कौन सा फंक्शन में काम करना चाह रहा है इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि एचआर का बहुत सारा फंक्शनल एरियाज है, तो उसको वो भी पता रहना चाहिए किस फंक्शन एरिया में काम करेंगे। आइदर रिक्रूटमेंट में करेंगे कि कॉम्पनसेशन मैनेजमेंट में करेंगे कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में करेंगे, किस में करेंगे, उसका इंटरेस्ट जोन क्या है, या इंडस्ट्रियल रिलेशन में करेंगे। ठीक है, इस टाइप में इंटरेस्ट एरियाज को वो पहले फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर चेक करेंगे कहाँ पर उसका इंटरेस्ट है। अगर एचआर में तो कौन सा फंक्शन में, अगर मार्केटिंग तो कौन सा फंक्शन में, फाइनेंस में तो कौन सा फंक्शन में है, प्रोडक्शन या ऑपरेशन तो कौन सा फंक्शन में है। सारी चीज को यहाँ पर इंटरेस्ट टेस्ट के थ्रू हम लोग एनालाइज कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे हम लोग। So next step on the selection process is द एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। सो नेक्स्ट क्या है, अब एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। जैसे आप सिलेक्शन टेस्ट को क्वालिफाई कर लेते हैं, यू हैव क्वालिफाइड द सिलेक्शन टेस्ट, नाउ इट इज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू, जहां पर द डिफरेंट एक्सपर्ट पैनल जो है आपको वहां पर इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू भी डिफरेंट टाइप से हो सकता है, आइदर पैनल हो सकता है, इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है। तो जब हम लोग इंटरव्यू पे आएंगे तो डिफरेंट टाइप्स का इंटरव्यू भी पढ़ाएंगे क्या है नहीं है। ठीक है, अभी समझ लीजिए कि आपका किसी भी तरह का इंटरव्यू हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, ठीक है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, पैनल इंटरव्यू भी हो सकता है, किसी भी टाइप का स्ट्रेस इंटरव्यू भी हो सकता है, किसी भी टाइप का इंटरव्यू हो सकता है। मींस इन एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू द डिफरेंट एक्सपर्ट विल कम एंड दे विल इंटरव्यू यू। क्या करेगा, आपको इंटरव्यू लेगा, आपके बारे में जो भी है आपके एक्सपर्ट एरिया के बारे में पूछेंगे या बाहर से पूछेंगे, जैसा होगा एज पर देयर डिसीजन दे विल आस्क द क्वेश्चन टू चेक योर एबिलिटीज, क्या क्या एबिलिटीज है, एंड आफ्टर दैट क्या करेंगे, वो लोग देखेंगे कि आपके पास वो सुटेबिलिटी है कि नहीं, कंपनी का काम को एग्जीक्यूट करने के सुटेबिलिटी है कि नहीं, वो चेक करेंगे। ठीक है, सो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू जैसे खत्म हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ में क्या होगा, रेफरेंस चेकिंग होगा। रेफरेंस चेकिंग, ठीक है, रेफरेंस चेकिंग क्या है, रेफरेंसेस। कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू देते हैं या इंटरव्यू देते हैं तो आपको वहां पर रेफरेंस देना होगा। एट द टाइम जब वो इंटरव्यू क्वालिफाई करेंगे तो रेफरेंस देना पड़ता है इन द एप्लीकेशन प्लान, कि 2 रेफरेंस देना है या 3 रेफरेंस देना है, एज पर द कंपनी रिक्वायरमेंट आपको देना होगा वो। ठीक है, तो रेफरेंस में क्या होता है, वहां पर रेफरेंस में आप जैसे 2 नाम आपको कॉलेज के 2 फैकल्टी या अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन का 1 मैनेजर, 1 फैकल्टी या अर्लियर ऑर्गेनाइजेशन का 2 मैनेजर्स को दिए हैं, तो उन लोग के पास वो कॉल जाता है और आपके बारे में सारे कुछ इन्फॉर्मेशन को और एक
बार वो वेरीफाई करते हैं कि प्रीवियस कंपनी में आपका बिहेवियर कैसा था, प्रोडक्टिविटी कैसा रहा, आपका स्ट्रेंथ क्या क्या है, आपका वीकनेस क्या क्या है। इंटरव्यू में तो जो पूछा आपका वो चीज एक बार और रीवेरीफाई कर लेते हैं थ्रू रेफरेंस चेकिंग, जो आप रेफरेंस नंबर देंगे। सो मेरे अनुसार अकॉर्डिंग टू मी, जब भी आप लोग रेफरेंस देंगे तो ऐसा ना हो कि रेफरेंस ऐसा आदमी को दे दिए कि जो आपके बारे में कुछ ना जानता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। रेफरेंस ऐसा पर्सन को देना है जो आपके बारे में सब कुछ जानता हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, सारे चीज जब पूछेंगे कंपनी तो ऐसा नहीं को कुछ बता ही नहीं पा रहे हैं, तभी आके आपका वहां से क्या हो सकता है ना, जॉब कट भी सकता है। ठीक है, तो रेफरेंस जब भी देना है थोड़ा सोच समझ के देना है, क्योंकि कुछ कुछ कंपनी वेरीफाई करते हैं, कुछ कुछ कंपनी वेरीफाई नहीं भी करते हैं, कुछ कुछ कंपनी करते भी है वेरीफाई। ठीक है, तो इस पे थोड़ा ध्यान देके काम करना है रेफरेंस पे। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ में क्या है, मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट क्या करना है, मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल टेस्ट। ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन जैसे आपका ये कंप्लीट होगा, रेफरेंस चेकिंग में आप करेक्ट है, हो गया आपका, हो गया सारा रेफरेंस चेकिंग, तो क्या होगा, आपको क्या करना, मेडिकल टेस्ट करना होगा। मेडिकल टेस्ट में कैसा होता है, किसी किसी कंपनी का अपना ओन मेडिकल डॉक्टर्स हैं, उसी से आपको टेस्ट करवाना पड़ता है। जैसे रेलवे वगैरह में उसका ओन अपना परफॉर्मा है, वहां पर जाकर आपको टेस्ट करना पड़ता है। आर्मी वगैरह में अपना ओन है, किसी किसी कंपनी का अपना ओन टेस्टिंग सेंटर है। ठीक है, उसका डॉक्टर अपने हैं, वो जाके टेस्ट करते हैं खुद से। ठीक है, कुछ कुछ है कि आपको लिस्ट पकड़ा दिए कि ये आपको टेस्ट करवाना है, जैसे प्रेशर वगैरह है, सीबीसी है, ये सब सारा आपका टेस्ट करना है, कंप्लीट ब्लड काउंट है, आपका चेस्ट एक्सरे करवाना है, सारी चीज आपको करा के एक प्रेस्क्राइब मेडिकल जो प्रैक्टिशनर है उससे आपको लिखा के लेके जाना है कि आप फिटनेस सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप फिट है काम करने के लिए। तो मेडिकल एग्जामिनेशन आपको देना होगा, आइदर इट विल बी कंडक्टेड बाय द ओन कंपनी और द कंपनी विल प्रोवाइड यू द गाइडलाइन कि ये करना है और आपको ये करके यहाँ से लाना है थ्रू द हॉस्पिटल्स और अदर सोर्सेस, आपका यहाँ से ला सकते हैं। ठीक है, ये आपका मेडिकल टेस्ट है। नेक्स्ट, जैसे मेडिकल टेस्ट खत्म हो जाएगा, आपका जॉब ऑफर, दे विल ऑफर द जॉब ऑफर लेटर, दे विल ऑफर यू द जॉब ऑफर आपको मिल जाएगा। तो जैसे आपका ये मेडिकल टेस्ट आप दे दिए, आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, आइदर मेल बाय पोस्ट, किसी से भी आ सकता है। वंस द ऑफर लेटर विल कम, वहां पर आपका ऑफर लेटर में सारे कुछ लिखा हो रहा है कि आपका किस डेजिग्नेशन पे हो रहा है। ठीक है, आपको कब ज्वाइनिंग करना है या ऑफर लेटर को कब तक रिप्लाई करना है आपको, ये आपको वहां पर दे दिया जाएगा। तो जैसे ही आपके पास ऑफर लेटर आता है तो आपको क्या करना है, उसको रिप्लाई देना है कि चलिए भाई इस डेट को मेरा होने वाला है। ठीक है, इस डेट को तक हमको रिप्लाई कर देना है ऑफर लेटर को, ताकि ऑफर मेरा डिक्लाइन नहीं हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, जो छठा पॉइंट है हम लोग का, उसमें क्या करते हैं, नेक्स्ट में है छठा पॉइंट में है अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेटर। यहाँ पर अपॉइंटमेंट और एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या होता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर आपको कंपनीज आपको अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, वहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ता है कि आपका ये टर्म्स एंड कंडीशन है। आपको 1 मंथ पहले आपको नोटिस देना होगा कंपनी छोड़ने के लिए। किसी किसी में रहता है कि आपका 1 ईयर का आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आप कंपनी 1 ईयर तक छोड़ के नहीं आ सकते हैं। आपको इस अपॉइंटमेंट जो आपको मिलने वाला है उसको ध्यान से पढ़ना होगा कि क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं हो। अपॉइंटमेंट लेटर जैसे आपको मिल गया, मींस आपका डेजिग्नेशन क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका पे स्केल क्या क्या है, सारे कुछ वहां पर लिखे हुए रहेंगे। ठीक है, आपका लीव क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, सारे कुछ वहां पर लिखे हुए रहेंगे इन द अपॉइंटमेंट इंटरव्यू। ठीक है, तो यही हम लोग का जो प्रोसेस है, टोटल प्रोसेस है, इसी पे खत्म हो जाता है सिलेक्शन का। ठीक है, तो सिलेक्शन का टोटल हम लोग डिस्कस कर लिए। तो सिलेक्शन क्या है और वेरी मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट है द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। जब नेक्स्ट वीडियो पे बताएंगे कि इंटरव्यू की क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू क्या क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग और नए टॉपिक पे देते रहेंगे आप लोग को वीडियोस। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहे ताकि हम नया नया वीडियो जल्द से जल्द और अपलोड करते रहें। थैंक यू।